Okay, hi everyone. This is Kritika Khandelwal, the career consultant for you. And today I have a very special guest, Miss Avni Sharma, who is into fitness industry. She is a Zumba instructor, certified Zumba instructor, and a great dancer, I know personally. And she has been into fitness industry for a few years now, and she has her own center of various women fitness center dedicated to women. Welcome, Avni, to our show. How are you doing? Thank you very much, Kritika, for inviting me in your session. Yeah, I'm doing very good, and hope you are also doing good. Thank you, Avni. Okay, let's get started. So इस सेशन का ये जो आइडिया है अवनी वो ये है कि मैं अपने ऑडियंस को ये बताना चाहती हूँ कि फिटनेस इंडस्ट्री में एज अ करियर अगर हमको ये कंसिडर करना है तो हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं, इसमें हमें क्या एजुकेशन चाहिए या फिर हमारे ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं. सो एज वी ऑल नो दिस इज अ वेरी रीसेंट डेवलपमेंट इन आवर सोसाइटी. कुछ पिछले 10-15 सालों से फिटनेस की तरफ हम सबका काफी ज्यादा इंक्लिनेशन हो गया है एंड अ लॉट ऑफ पीपल नाउ आर going towards nutrition and fitness, in their personal lives. They are becoming conscious about it, and Right. hence also a very big career industry has been created in this field. So Avni, I would like to take your expert opinion on this कि ये क्या इंडस्ट्री है, इस इंडस्ट्री में क्या इसका फ्यूचर है, अभी करंट में ये जो इंडस्ट्री है ये किस स्टेज पे है ग्रोथ के, और इसमें ये जो इंडस्ट्री ओवरऑल है इसके बारे में आप हमें क्या बता सकते हैं? Yes, Kritika, if we talk about the career in fitness sector, तो ये remarkably change हुआ है over the years, and it is due to the work pressure is increasing day by day in every sector. If we talk about the corporates, the work pressure is increasing. So basically, people are switching to fitness centers and fitness instructors for their healthy lifestyle. A pandemic was also a reason. After COVID or during COVID, people became more health conscious, and they wanted to approach fitness instructors and fitness centers for the same. And we also faced lockdown at times. So we were not able to, the clients were not able to approach fitness centers. So the online medium was a approachable medium through which they can do exercises. They could do exercises at their homes, and they could follow the exercise regime regularly. So this was the basic reason why the industry grew. And growth prospects, growth prospect is quite high. अगर हम बात करें तो there are a lot of options, career options, like you can be a personal instructor, you can be a gym instructor, you can be a Zumba instructor, like I have taken license in Zumba. License in ballet, license in Bollyfit. You can be a nutritionist, you can be a dietitian, you can be a physiotherapist. Apart from this, we are having a fitness apparel designer, fitness tech engineers. So these are multiple options. You can opt any of these. अच्छा, तो जो मैं आपकी बात से समझ पाई कि ये इंडस्ट्री धीरे धीरे करके अब ये ऑनलाइन मीडियम को एक्सप्लॉइट करके एक तरह से घरों में पहुंच गई है. तो इंस्टेड ऑफ पीपल गोइंग टू अ फिटनेस सेंटर, नाउ फिटनेस सेंटर्स आर कमिंग होम टू पीपल. सो डेफिनेटली व्हाट आई अंडरस्टैंड इज स्कोप इसका इन द कमिंग डेज बहुत ज्यादा है. अभी क्या इसका ये भी मतलब है कि एंट्री जो इस फील्ड में है वो ज्यादा आसान हो गई है, या फिर किसी को अगर एंटर करना हो तो हाउ इज द एंट्री प्लेस्ड इन दिस टाइप of careers? The very first step, Kritika, you should get a certificate or associated degree. Okay, for that you can take certification in Zumba. There are a lot of certification courses available online, and if you want to go at an international level, you can do certification in with ACE, that is American Council on Education, on exercises, sorry. And you can get good knowledge of exercise patterns, nutrition, and lot of anatomy, physiology. Okay, so these are some of the subjects that are included in ACE course. You can go and search online the ACE course, and then later on the job, if you go for a job, the employer would definitely ask you for the certification or the associated degree.
So you can confidently show your certification, and later on you can start training the clients and good. ओके और किसी को अगर इसमें अपना ही लेट्स से काम करना हो बिकॉज इट इज आल्सो ऑनलाइन, इज देयर एनी स्कोप ऑन लाइक सोशल मीडिया चैनल्स, या फिर आप अपना खुद का कुछ इसमें कर सकते हैं इस लाइन में, या आपको जॉब ही करना रहेगा? एग्जैक्टली बहुत अच्छा पॉइंट पिक किया है कृतिका. यू कैन बी अ फिटनेस ब्लॉगर. आजकल हम लोग देख रहे हैं कि इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे देयर आर लॉट ऑफ फॉलोअर्स ऑफ फिटनेस प्रोफेशनल्स. तो अब वहाँ से क्या हो रहा है कि दे आर अर्निंग गुड और साइमल्टेनियसली दे आर गेटिंग फेमस, है ना. तो इसमें क्या हो रहा है कि हम लोग दोनों पर्पस हमारे सॉल्व हो रहे हैं कि हाँ ठीक है, हम लोग अच्छी इनकम भी हमारे पास में है, वी आर गेटिंग फेमस डे बाय डे. तो एक ये हो गया कि हाँ ठीक है, अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो ये प्लस पॉइंट है आपके लिए कि आप हाँ ठीक है एक फिटनेस सेंटर स्टार्ट कर रहे हैं. इफ यू आर financially dependent, so you can start your business. But apart from this, you can start your profession as fitness blogger and YouTuber. गुड टू नो. एंड इस मतलब आपने हमें कुछ कोर्सेज के बारे में बताया, क्या इसकी कोई कॉलेज डिग्री वगैरह भी होती है, और क्या इस तरह के फिटनेस के लिए कोई प्री रिक्विजिट है कि जैसे कि हमें 11th 12th में यू नो वी हैव टू हैव फिजिकल एजुकेशन? आई एम नॉट श्योर, आई एम जस्ट पिकिंग फिजिकल एजुकेशन एज एन एग्जांपल, बट ऐसा कोई प्री रिक्विजिट है या फिर ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी इस फील्ड में घुस सकता है? No, there is no prerequisite for the same. And if you want to apply or if you want to get certification or degree in the same, there are many educational institutes in India. If we talk about a particular state like Rajasthan, Rajasthan University provides yoga degree. If we talk about Chandigarh, there is a college, Government College of Yoga Education and Health. It also provides yoga degree. So these are some of the institutes. As I mentioned earlier, ACE, American Council on Exercises, is also responsible for providing certification. So ये सारी चीजें हैं जहाँ की हम लोग को हमें ये नहीं कि हमारी 11th 12th में कुछ ऐसे हमारे फिजिकल एजुकेशन जैसे आपने मेंशन किया वो होना चाहिए. तो आपका बेसिक 12th होना चाहिए. एंड इफ यू वांट टू बी अ फिजिकल थेरेपिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, देन you should clear the medical examination, जो कि 4.5 years का कोर्स होता है फिजिकल थेरेपिस्ट का. एंड later on you can proceed with this career. ओके ओके ओके. अच्छा, आपने हमें शुरुआत में बताया था that there are various options, like you can be a gym instructor or a Zumba instructor, etc. Can you just walk us through again with all of these options and maybe just tell us a little bit about each one of them कि gym instructor का क्या काम रहता है और Zumba instructor का क्या काम रहता है, etc. तो इसमें हमारे पास क्या क्या options है, और ये different जो options है उसमें लोगों को क्या करना रहता है करियर में? जैसे मैंने बताया कि देयर इज अ सर्टिफिकेशन इन ज़ुम्बा. आई आल्सो टुक लाइसेंस इन ज़ुम्बा. उसमें बेसिकली यू डोंट नीड एनी क्वालिफिकेशन जो आपको क्लियर करना है. तो उसमें आपको इफ यू आर फाइनेंशियली डिपेंडेंट, इफ यू आर पोटेंशियल इनफ टू पे मनी, देन यू कैन टेक सर्टिफिकेशन कोर्स एंड सर्टिफिकेशन इन ज़ुम्बा. एंड ये मेनली ग्रुप एक्सरसाइजेस इंस्ट्रक्टर के कैटेगरी में आता है. तो इसमें आपके ग्रुप, अगर हम बात करें ग्रुप एक्सरसाइजेस इंस्ट्रक्टर या फिर ट्रेनर की बात करें, तो देयर आर मैनी प्रोफेशंस लाइक जुम्बा इंस्ट्रक्टर हो गया, पिलाटेस हो गया, योगा इंस्ट्रक्टर हो गया. तो इसके लिए हम लोग के पास में ऑप्शंस हैं. प्लस अगर हम लोग जिम इंस्ट्रक्टर की बात करते हैं तो मैंने जैसे आपको बताया ACE जो है, हमारे कुछ ऐसे काउंसिल्स हैं जो सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करते हैं. तो यहाँ पे भी हमारे पास में ऑप्शन है कि वी कैन बी अ न्यूट्रिशनिस्ट, वी कैन बी अ डाइटिशियन, वी कैन बी अ स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट. जो आजकल एथलेटिक देख रहे हैं आपके एथलेटिक ट्रेनर्स हैं, तो वो भी आजकल काफी स्कोप में है. तो ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं हमारे पास में. एंड इनका यही रोल होता है जिम इंस्ट्रक्टर्स का, पर्सनल ट्रेनर्स का, कि जैसे हम लोग जिम में जा रहे हैं तो इनको क्या न्यूट्रिशन वैल्यू आनी चाहिए, आपका कैलोरीज बर्न जो है आपका वो बता सके, आपके बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग गाइड कर सके. आजकल एक और है स्कोप वेट मैनेजमेंट कंसल्टेंट.
तो वो भी अच्छा। आपका आपका लाइफस्टाइल, दे वॉच योर लाइफस्टाइल, दे वॉच योर हाइट, वेट, एंड अकॉर्डिंगली दे प्रोवाइड यू डाइट चार्ट। तो वो भी अच्छा। आजकल आपकी स्कोप में है। प्लस वी हैव फिटनेस एडमिनिस्ट्रेटर और से एचआर मैनेजर का जो रोल होता है, तो वहाँ पे भी उनको क्या होता है कि आजकल बहुत सारे जिम्स खुल रहे हैं, फिटनेस सेंटर्स खुल रहे हैं, तो वहाँ पे भी एक मैनेजमेंट के लिए वी शुड हैव अ गाय और अ गर्ल जो कि पूरा एक मैनेज कर रहे हैं। तो फिर वहाँ पर हम लोग को एक चाहिए कि एक प्रोफेशनल कोर्स है ये फिटनेस डायरेक्टर का। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि हमारे पास में रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, लाइक वी हैव टू वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द जिम इक्विपमेंट्स, हाइजीन पूरा मेंटेन करना होता है। जो इंस्ट्रक्टर्स हैं जो कि आपके अंडर हैं उनको सुपरवाइज करना होता है, एम्प्लॉय मैनेजमेंट का पूरा रोल होता है। तो इज अ पार्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप ऑल्सो, जो कि मैं भी कर रही हूँ साथ में। तो ये एक बेसिक हमारे पास में क्वालिफिकेशंस हैं, और से दीज आर सम कोर्सेज और दीज आर सम राइट। करियर ऑप्शंस यू कैन गो विद। थैंक यू अवनी, दिस इज वेरी इंसाइटफुल। एक मेरा सवाल था कि जैसे कि हम बात करें किसी भी इनमें से किसी भी ऑप्शन की, तो हाउ डज योर टिपिकल डे लुक्स लाइक? मतलब आप अपना दिन कैसे शुरुआत करते हैं, आपके टिपिकल वर्किंग आवर्स, या ऑन एन एवरेज, आई एम श्योर हर एक करियर ऑप्शन के अलग अलग होते होंगे, बट ऑन एन एवरेज अगर हम इंडस्ट्री की बात करें तो क्या जब कोई इस करियर को चूज करे उसको क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए कि उसको कितने घंटे का काम रहेगा, उनका वर्क लाइफ बैलेंस कैसा रहेगा, उनके वर्किंग आवर्स टिपिकली क्या होते हैं? कुछ आप इस डायरेक्शन में हमें बता सकते हैं? Right. Kritika, as an entrepreneur, you don't have any fixed working hours. You also know that. है ना? So Yeah. we don't have any fixed working hours. We have to work on Sundays also. We have to pick client calls. We have to schedule appointments. तो ये सारे work होते हैं as an entrepreneur. ठीक है? We don't have any fixed time. और बाकी if I talk about the employees, तो एम्प्लॉयज के पास में दे हैव फिक्स वर्किंग आवर्स, दे बिकम अर्ली राइजर, दे स्लीप अर्ली इन द नाइट, है ना? तो ये सारी क्वालिटीज यू शुड पजेस, एंड यू शुड पजेस होता भी नहीं है, मतलब कि आप अपने आप ही इनबिल्ट हो जाते, मतलब हो ही जाता है कि अगर आप इस प्रोफेशन में आते हैं। तो बाकी जैसे हम बात करें, जैसे मैंने बताया कि अर्ली राइजर, तो द डे स्टार्ट्स विथ योर एक्सरसाइज रेजिम, देन यू सुपरवाइज योर क्लाइंट्स। और एक हाँ ठीक है, कुछ आती है डिफिकल्टीज, देयर आर सम डिफिकल्टीज लाइक क्लाइंट सेटिस्फैक्शन, यू नो, क्लाइंट सेटिस्फैक्शन इज इम्पोर्टेंट इन एवरी सेक्टर। तो वो है कि वी कैन नॉट मीट क्लाइंट सेटिस्फैक्शन एवरी टाइम, है ना? तो देयर इज a 0.1% chance that we cannot meet the client satisfaction, but for that we are working, and we keep records, and we keep monitoring the client's the performance regularly. तो ये चीजें रहती है। हाँ ठीक है, हम लोग इससे भी डील कर रहे हैं, इन प्रॉब्लम्स के साथ में भी डील कर रहे हैं, बट एज एन एंटरप्रेन्योर आपको 24 घंटे, मतलब 24/7 आपको काम करना है। यू शुड बी एक्टिव एनफ, एंड यू शुड बी प्रोएक्टिव एनफ एंड एनर्जेटिक। और बट टिपिकली आपका जो दिन है, सो हाउ मच ऑफ इट इज लाइक यू आर आल्सो लेट्स से डूइंग एन एक्सरसाइज और टेकिंग अ सेशन, एंड हाउ मच ऑफ इट इज अदर देन दैट? I don't know if it is phone call record management, yeah, since you are an entrepreneur, I'm sure you'll have other things like, bills to pay, salary, etc. So आपके दिन का अगर मैं पूछूं कि कितना % आपको active physically you have to be involved into something, and how much of it is the back end administrative काम या फिर paperwork, etc. तो how would you split this? As I said that I have to start my day with exercise regime, and हाँ, मैं जुम्बा इंस्ट्रक्टर हूँ, तो वो मेरी 2 क्लासेस होती हैं इन मॉर्निंग एंड इन इवनिंग। और साइमल्टेनियसली आई हैव एडमिनिस्ट्रेशन वर्क दैट आई मेंशन्ड अर्लियर, तो उसमें हमें client calls, scheduling, और I have to keep records of every client कि वो क्या progress कर रहे हैं, क्या वेट है उनका। तो ये भी वर्क हमारा साइड बाय साइड चलता रहता है, मतलब अपार्ट फ्रॉम टेकिंग एक्सरसाइजेस क्लासेस, एक्सरसाइज बैचेस, आई हैव टू कीप एवरीथिंग इन रिकॉर्ड।
Right. So that's also an important element of your work in which you have to do all the paperwork, etc. अपनी साथ ही में एक और सवाल मेरे मन में आया है कि जैसे कुछ कुछ करियर्स में होता है कि हमेशा हमें आगे भी हमेशा अपने आप को अपडेटेड रखना होता है या कुछ ना कुछ पढ़ते रहना पड़ता है, तो आपकी फील्ड में ऐसा क्या है जिसके बारे में आप लोग को अपडेटेड रहना पड़ता है, या इज देयर अ लॉट ऑफ स्टडी दैट यू कंटिन्यू टू डू इवन एज अ प्रोफेशनल, और इट इज लिमिटेड टू ओनली, I don't know, like maybe very less or none at all? Like, how is the learning, in future, yeah, study as you are in the profession? Yeah, Kritika, we can see that technologies are upgrading day by day. The people who did not have any idea of technology, they faced during pandemic, because I was from a IT background, so I knew that how to operate the Zoom meetings or take batches online. तो वो एक प्लस पॉइंट हो गया कि हाँ ठीक है, एडुकेशन वर्क है ना। तो और बाकी हम लोग को एनहांसमेंट के लिए ये ऑफ कोर्स वी हैव टू स्टडी। कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी किसी क्लाइंट का वेट स्टक हो जाता है, तो उस पर हम लोग रिसर्च करते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ मेडिकल एलिमेंट्स दे आर सफरिंग फ्रॉम, और व्हाई द वेट इज स्टक समवेयर। एंड देयर आर लॉट ऑफ मशीन्स, मॉडर्न मशीन्स जो होती हैं, वो उनके ऊपर रिसर्च करना होता है हमें कि हाँ ठीक है, व्हाट इज गुड फॉर पर्टिकुलर क्लाइंट, कि हम उनको प्रोवाइड कर सके। पूरा एनालिसिस होता है, असेसमेंट होता है उनके लिए। तो यस, क्रिएटिव, यू हैव टू बी क्रिएटिव एंड इनोवेटिव, नो, मतलब कि आपको ये नहीं होता, कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। जहाँ पे आपकी कंसिस्टेंसी ब्रेक हुई तो यू स्टार्ट लूजिंग योर क्लाइंट्स। तो इसलिए हमें अपडेट रहना पड़ता है हर चीज के लिए। राइट। अच्छा, आपने एक पॉइंट टच किया था जो मैं आपको दोबारा टेक यू बैक टू इट। व्हाट आर द क्वालिटीज अ पर्सन मस्ट हैव अगर उनको फिटनेस इंडस्ट्री में जाना है? तो कुछ चीजें होंगी जो शायद नेगोशिएबल होंगी, जैसे आपने बोला अर्ली राइजिंग इज समथिंग दैट पीपल कैन इनकॉर्पोरेट, इवेंचुअली उनकी आदत बन जाती है, बट कुछ चीजें ऐसी होंगी जो आप में होनी ही चाहिए। अगर आपको वो चीजें नहीं पसंद या वो आपकी आदत या पर्सनालिटी नहीं है, तो दिस इज नॉट द करियर फॉर यू। तो ऐसी कौन सी चीजें हैं आपके हिसाब से जो must haves हैं for somebody to think of fitness as a career? I would say that the person should be disciplined, and they should be hardworking, active, energetic. You should be energetic because your energy reflects. तो वो क्लाइंट के पास अगर नहीं पहुंचेगी तो कहीं लैग करेगा वो चीज, है ना। और आप यू शुड हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल, यू शुड हैव लीडरशिप क्वालिटी, एंड नाउअडेज वी आर एक्सपेक्टिंग आवर इंस्ट्रक्टर्स टू बी टेक फ्रेंडली, क्योंकि आजकल जो ऑनलाइन मीडियम्स हैं, तो इसलिए हमें टेक फ्रेंडली भी होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। Right. I think what I take away is definitely discipline. I think is a must have, because आपकी life, I know कि आप बहुत आपका एक बहुत set schedule होता है, and you have clients for which you have to be very very disciplined. And I have in my earlier video spoken about this one trait जो हम बहुत ज्यादा इसके बारे में बात नहीं करते, but मुझे लगता है discipline is like one of the most essential trait for a successful career, because motivation आप हर दिन नहीं होगा, तो उस दिन आपको discipline ही चाहिए to get up from the bed. But nice. I think my next question to you is, differing from what we've discussed so far, किसी को अगर इस करियर में घुसना है तो उनके लिए ये सवाल है ज्यादा कि व्हाट इज द रेंज ऑफ अर्निंग इन दिस करियर। तो जैसे कोई शुरुआत करता है, आप दोनों मुझे बता सकते हैं एज अ जॉब एंड एज एन एंटरप्रेन्योर, तो क्या रेंज रहती है, किस तरह का एवरेज इस इंडस्ट्री में रहता है, और आप कितना ऊपर तक जा सकते हैं, आप कितना ग्रो कर सकते हैं, और आप कितना कमा सकते हैं इस करियर में? Kritika, if we talk about the average salary, then it is around 2,40,000 per annum. But it completely depends on person's skill, the years of experience, and the brand with which the person is working, employee is working. Number of working hours कभी कभी फिक्स होते हैं किसी किसी ब्रांड में कि you have to serve only for 4 hours or 5 hours, and if you are freelancer then you can go to various gyms, वहाँ पे आप you can spend, you can take classes for an hour or couple of hours. तो ये सारी जो है parameters that are responsible for your pay scale.
ये चीज हो गई और आपने पूछा जैसे कि एज अ बिजनेस और एज अ जॉब कौन सा प्रेफरेबल है लोगों के लिए, तो वही मैं रिपीट करूंगी, इफ यू हैव पोटेंशियल, इफ यू कैन इन्वेस्ट मनी इन दिस सेक्टर, देन यू आर मोस्ट वेलकम, यू कैन गेट गुड ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज वेरी गुड। लेकिन अगर हम लोग एज एन एम्प्लॉय बात करें तो जैसे मैंने बताया कि फ्रीलांसर, यू कैन वर्क एज अ फ्रीलांसर यू कैन गो टू वेरियस जिम्स, वहाँ पे आप कपल ऑफ आवर्स के लिए कर सकते हैं ट्रेन, तो वहाँ पर भी आपका जो है पे स्केल वो अकॉर्डिंगली अच्छा होता है, एंड यू कैन तो बैलेंस। टिपिकली 1 घंटे का अगर कोई फ्रीलांसर है और वो 1 घंटा किसी जगह पे जा रहा है, चाहे जिम चाहे किसी के पर्सनल घर पे, तो उनका क्या रहता है एवरेज इसमें पे, मतलब उन लोग को कितना पे मिल दे कैन एक्सपेक्ट इन एन आवर दैट दे इन्वेस्ट? Yeah, as I told you that it totally depends on one's skill and qualification and degree, years of experience, उसको कितना experience है, और कभी कभी क्या होता है कि the person is not skilled और लोगों को पसंद नहीं आता, तो जो brand है वो depreciation की तरफ जाता है उनके growth की। तो अगर हम लोग एवरेज बात करें तो एक सेशन में हम लोग को अराउंड वी कैन अर्न 1,000 रुपीज फॉर एन आवर। हम लोग भी जाते हैं सेशंस इंस्टीट्यूट्स, काफी इंस्टीट्यूट्स में, तो वी कैन अर्न अप टू 3,000 फॉर एन आवर बिकॉज वी आर स्किल्ड एंड वी हैव गुड एक्सपीरियंस दिस सेक्टर। तो ये एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग होता है, एंड इफ यू आर कैपेबल इनफ कि आप क्लास ले सकते हैं ऑफ मोर देन 500 क्लाइंट्स और 500 एम्प्लॉयज इन एन इंस्टीट्यूट, तो वो भी आपका वेरी करता है। अच्छा, और क्या ये पे स्केल अपनी न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियन इन सब का इसी तरीके का रहता है कि उनका फिजियोथेरेपी फॉर एग्जांपल इनका कुछ ज्यादा होता है, कम होता है, या ये सेम ही पे स्केल रहता है? इफ वी टॉक अबाउट द फिजियोथेरेपिस्ट प्रोफेशन, तो उनके के लिए क्या हुआ कि वो मेडिकल बैकग्राउंड से है, तो उनका पर सेशन जो होता है इट कैन इट कैन स्टार्ट फ्रॉम 500 पर सेशन, जो कि 1 आवर का होता है, और न्यूट्रिशनिस्ट, डाइटिशियन, इनका वेरी करता है, ये इनका इक्विवेलेंट होता है पर्सनल ट्रेनर्स के अकॉर्डिंग। और बाकी हम बात करें तो फिजिकल थेरेपिस्ट और फिजियोथेरेपिस्ट, उनका पे स्केल हाई होता है कंपैरेटिवली, बिकॉज दे आर फ्रॉम मेडिकल बैकग्राउंड, दे हैव क्लियर्ड एग्जाम्स, मेडिकल एग्जाम्स, एंड हैव टेकन 4.5 years ऑफ कोर्स, तो वो सबसे ऊपर है। ओके ओके, ठीक है अवनी, आई थिंक हमने ये टच कर लिया है कि आपकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो मुझे समझ आई इज 2 part. One is the whole fitness and doing the hard work of physical and the second is all record management and making sure you have all the customer information and researching etc. Avni, ये question आपके लिए personally, what is that one thing that you really love about your job, and what I mean about your work, and what is that one thing that you know is the worst, or maybe if you get an opportunity you would want to change in your work? I had great passion for dance since childhood. So I love Zumba. I love doing Zumba, and as I said, the energy reflects. Yeah, and clients also enjoy doing Zumba with me. I prepare choreography on every weekend for client engagement. तो वो काफी अच्छा होता है, वो this is the best part I think I feel in my job, and connecting with various people from various background, different backgrounds, like I connected to you, है ना, तो वो हमारा लगता है कि हाँ ठीक है, ये रिलेशन हमारा फ्यूचर भी काफी अच्छा ग्रो करे। So these two are basic and important parts कि मुझे जो अच्छे लगते हैं, and the least like everyone does is downfall. Downfall क्या होता है कि during pandemic, yeah, we faced a lot of financial loss, and we had to pay salary to our employees, तो वो एक setback था हमारे लिए, लेकिन we had to deal with it. तो एक ये downfall है, when we come in business field, when we start our venture, तो हम लोग mind makeup करके आते हैं कि ups and downs will definitely come, but you know, downfall hurts. Yeah, of course. But I think pandemic was not something which was anybody's control, and
I'm glad to see that Winning Moves has completely turned around the game by coming online, and I see so many sessions that you do online now. So I think in a few years to come, this may actually turn out to be a blessing. Oh, thank you. Thanks for the wishes. अपनी लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड, जो इस करियर में आना चाहते हैं लोग, उनके लिए कोई आप एडवाइस या कोई रिकमेंडेशन आपकी तरफ से? Recommendations, yes. The 4 P's जहाँ मैं सबको बताती हूँ कि it always work for me. The 4 P, first is planning. If you want to come in this sector, तो वो पूरी planning के साथ that you get an associated degree or certification, and then you can start training the people and start earning experience. तो ये planning हो गई पूरी. The second P will be passionate. You should have a great passion for your work. अगर आपके पास passion नहीं है तो you cannot give your 100% in the same. The third P will be the patience. Patience बहुत जरूरी है हर फील्ड में. There will be some moments where you will feel frustrated or feel monotonous. तो वहाँ पे आपको थोड़ा patience रखना पड़ेगा. और आपने करियर चूज किया है तो you have to be successful too. The fourth P is your push yourself. You have to constantly push yourself. आपने करियर चूज किया है तो you have to be self motivated and you have to push yourself and lead to success. आई थिंक जो आपने ये 4 पीस का मंत्र दिया है, ये हर करियर पे सूटेबल है. बट डेफिनेटली फिटनेस के लिए भी ये एटलीस्ट द पुश योरसेल्फ एंड द पैशन पार्ट, आई कैन रियली रिलेट टू इट, बिकॉज आई थिंक आपकी करियर में बहुत हार्ड वर्क है, बहुत फिजिकल हार्ड वर्क है. और लोग हर दिन एक्सरसाइज के लिए खुद को मोटिवेट नहीं कर पाते, वहां आप लोग दिन में इतनी एक्सरसाइजेस करते हैं. और मुझे पता है कि आप बहुत स्क्वाट्स और बहुत लंजेस और बहुत जंपिंग आप करते हैं, तो आई एम श्योर यू नीड अ लॉट ऑफ मोटिवेशन टू डू दैट. Avni, that is all from my side. Thank you so much for sparing time with us and for our audience to give so much of your valuable insights. And I am sure your entrepreneurship and your venture will be very, very successful with your 4 P's and with the Zumba background and the love for Zumba that you have. Thank you so much, Avni. And Pratika, one thing I want to say to you that you are doing really very well, and wishing you all the best for your future, and may you get everything that you want in your life. Thank you so much. Thank you. Means a lot. Thank you.